A very good morning to all my dear students. Today we are going to continue the next topic of the rural development. In the previous lecture, we have understood what is rural development. It's a comprehensive term. We studied two aspects. One from the aspect of the development of the whole nation. Other is specific only for the rural area, and our chapter is concerned with the development specific to the rural area. We studied about institutional sources as well as the non-institutional sources of credit, and now we are going to start with what are the institutional sources of rural credit. So broadly we see there are three institutional sources of the rural credit in India. One is the cooperative banks. Cooperative banks, you already know it, I told you earlier it was formed. Then commercial banks were given the role. We studied the evolution also in the previous chapter, how the rural credit, it was evolved, how the institutional sources of the rural credit evolved. Then we studied the third one, the regional rural banks, and we also came to know that the apex institution for the rural credit is a NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. It is the apex bank in the rural credit. It coordinates the activities of these banks. It does not deal directly with the rural population. The relative contribution of these three are shown here. You see in the first column we have sources. Second one is a year 1984-85 and then 2010-11, a gap of 25 years approximate. Sources, cooperative bank. If we see in 84-85, they were contributing 55% in the rural credit, but now it decreased to merely 16%. Commercial banks, they were contributing 45%. It increased to 74%. Regional rural banks were not in operation at that time. It now has come up and contributes 10%. These banks contribute 10% to the rural credit. This is the scenario between 25 years. But we see in rupees 1000 crore, if we see in 1984-85, the total credit was around 6000 crore, which increased to 75 times 447,000 crore. So this is what we have seen here in this schedule. So we have studied what the table tells us. This we have written here. The table reveals three things. Number one, total amount of the institutional credit increased by about 75 times over the period of 25 years. This one, the last what we have studied, from 6,000 crores to 447,000 crores. Relative share of the commercial banks you have seen increased while that of the cooperative banks reduced. However, the absolute credit has increased considerably in all the sources. We have seen the absolute credit, it is considerably too much in all these sources. Now what we are going to start is types of the loan requirements in the rural areas. रूरल एरियाज के लोगों को लोन चाहिए, लोन की रिक्वायरमेंट के लिए ही तो बने हैं ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं. अब लोन तो चाहिए, कितनी तरह के, कितने टर्म का लोन? शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन. ये तीन तरह का लोन है. और क्या है देखिए, अब देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ लोन, रूरल क्रेडिट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. सबसे पहला शॉर्ट टर्म लोन्स. ये लोन अप टू 15 मंथ्स, 15 महीने तक का लोन है.
इसकी टर्म जो है, आपका जो टाइम पीरियड है आपको 15 मंथ। क्यों चाहिए ऐसा लोन? अगर उनको इनपुट खरीदनी है जैसे कि बीज, खाद, ये सब चीजें, फॉर परचेसिंग HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फॉर डीजल, तो ये सारे छोटी मोटी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए या अपने कुछ घर के खर्च पूरे करने के लिए ये लोन उनको चाहिए। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन। सेकेंड नंबर पे आता है मीडियम टर्म लोन। 15 महीनों से लेकर 60 महीने, 60 मंथ्स, मतलब 5 इयर्स तक, ये मीडियम है। 15 मंथ्स to 60 months. This one. The rural people require such loan for what? कुछ पशु खरीदने हैं, कैटल, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए, माइनर इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड, कुछ इंप्रूवमेंट्स करनी है, ये उनके लिए। अब आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे समय के लिए, मतलब above 5 years, 6, 7, 10, 15 years, लॉन्ग टर्म के लिए। These are for the purposes of what? For buying land, नई जमीन खरीदनी है, मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना है, पुराने दिए हुए जो कर्ज लिए थे उनको वापस करना है, और परमानेंट इंप्रूवमेंट, ट्यूबवेल, बोरवेल, फेंसिंग, कुछ ऐसे बड़े लेवल पर जो इंप्रूवमेंट करनी है। तो ये 3 तरह की लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं रूरल क्रेडिट में लोगों की। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो शॉर्ट और मीडियम टर्म, खास बात ध्यान रखना, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन रिक्वायरमेंट, जो रूरल क्रेडिट की शॉर्ट का मतलब अब ध्यान से समझ जाना, 15 मंथ्स, अप टू 15 मंथ्स, और मीडियम का मतलब 15 मंथ्स टू 60 मंथ्स। जो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस वहां काम कर रहे हैं, वो 3 हैं हमारे पास, 3 इंस्टीट्यूशंस। मैं बार बार पूरा नाम नहीं लूंगा, उसकी शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, ध्यान से देखो। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको हम SCBs बोलेंगे, SCBs। S का मतलब स्टेट, C का मतलब कोऑपरेटिव, B का मतलब बैंक्स। इनको बार बार ध्यान से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, DCCBs। पहला तो नाम ही हो गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट मतलब स्टेट लेवल पर, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, देखो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, DCCBs। थर्ड, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, क्या हो गया, PACS। तो अब 3 हो गए, देखो, SCBs, DCCBs और PACS। ये 3 तरह के शॉर्ट और मीडियम टर्म की लोन रिक्वायरमेंट पूरा करने वाले क्रेडिट के इंस्टीट्यूशंस हैं रूरल एरिया में। आओ अब हम पहले की बात करते हैं कि क्या इनका सिस्टम है। SCB, ये इट इज द एपेक्स बैंक एट द स्टेट लेवल, ये सबसे टॉप लेवल का, स्टेट लेवल पर सबसे टॉप जो है वो एपेक्स बैंक है। नो डाउट ये भी नाबार्ड पे डिपेंड है, अभी आपने पढ़ा था नाबार्ड के बारे में, हम समझेंगे इसको। इट डील्स विद DCCB, यानी ये जो SCB है इसकी डीलिंग है DCCB से, ठीक। DCCB किससे डील करता है, इन टर्न डील्स विद PACs। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स डील्स विद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डील्स विद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। तो 1, 2, 3। उसके बाद इन दिस वे DCCB इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन SCBs एंड PACs। देखो इन दोनों के बीच की इंटरमीडियरी, विचोला, मीडिएटर, इसको और इसको मिलाने वाला बीच में कौन हो गया, DCC, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल कोऑपरेटिव बैंक।
is a mediator between these two. ठीक, this is how these three are related to each other. These are related together. अब सिस्टम क्या है? जो SCB है उसको पैसा कहां से मिलता है? नाबार्ड से. SCBs ड्रॉज द फाइनेंस, पैसा निकालता है फ्रॉम नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये पैसा कहां से मिलता है? कहां से मिलता है पैसा? SCB को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कहां से पैसा मिलता है? नाबार्ड से. ये पहला हो गया. सो SCBs फाइनेंसिंग द DCCBs, ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आपका जो है कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको फाइनेंस कर रहा है. मींस SCBs डायरेक्टली फाइनेंसिंग द PCBs. PCB मींस वही PACB का, PACs का, PACs, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. तो अब ये सारा सिस्टम है फ्लो ऑफ क्रेडिट का. यू सी हियर, फ्लो ऑफ क्रेडिट कैसे जाएगा? सबसे पहले नेशनल लेवल पर नाबार्ड है, उससे पैसा जाएगा स्टेट लेवल पर SCB, अभी पढ़ा है आपने, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. वो आगे करेगा फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक. डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक आगे फाइनेंस करेगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को एट द विलेज लेवल. और इस तरह रूरल पॉपुलेशन के पास ये पैसा पहुंचेगा. पूरी उम्मीद है जिस तरह से मैंने आपको पार्ट्स में समझाने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी. और आपके पास एक ऑप्शन है, वीडियो लेक्चर तो आपके लिए 10 बार रिवर्स करो, फिर सुन लो, कहीं टॉपिक पे रुक जाओ, नोट्स बना लो, मुझे सुनकर साथ साथ लिखते रहो. हो सकता है बोर्ड विजिबल नहीं होगा, वॉइस तो जरूर विजिबल होगी. अब वॉइस सुनोगे तो समझ आएगी, और सुनने के लिए लगन होनी चाहिए, और लगन होने के लिए मिशन क्लियर होना चाहिए. और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी. मेरे पूज्य गुरुदेव ये कहा करते थे कि जब तक हमें अपना रास्ता मुश्किल लगता था, जब तक हमारा टारगेट फिक्स नहीं था, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे. हमें किसी ने राह नहीं बताई, हमें किसी ने रास्ता नहीं बताया. अब टारगेट दिख रहा है. राह को जब पा लिया, जब उस रास्ते पे आ गए, किसी ने बता दिया कि इस रास्ते पे सीधे चले जाओ, वो तुम्हारा मंजिल है. राह को जब पा लिया, मंजिल नजर आने लगी. तो आप सब की राह एक ही है कि बहुत बेस्ट आपने अपने मार्क्स लेने हैं प्लस 2 में. खूब बढ़िया नंबर के लिए मेहनत कीजिए, वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लाइक्स और कमेंट्स जो मेरे लिए भी मोटिवेशन है और आपके लिए भी, क्योंकि आपकी भी इससे लाइफ में चेंज आने वाला है. आपकी इकोनॉमिक्स आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं. आपको टोटल कॉम्पैक्ट एंड फुल कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिल रहा है और मिलता रहेगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.